session. This is a part of a national level webinar series by the International Longevity Center India, that is ILCI, with the support of Garuda Chemicals Limited under CSR. Today we have with us Dr. Abha Chaudhary from Anugraha, Delhi. Welcome, ma'am. I will now introduce Dr. Abha to you and then we will begin the session. Dr. Abha Chaudhary is founder and chairperson of a national NGO Anugraha, working in the areas of old age care, networking and advocacy, healthcare, legal aid and counseling, corporate social responsibility, and skill development of geriatric caregivers. She is an alumni of United Nations International Institute on Aging Malta and PhD in social gerontology. She is an internationally acclaimed expert in gerontology and gender issues. She has completed her doctorate degree on rural aging intervention strategies. She has worked as an expert with United Nations, ESCAP, UNIC, UNFPA, FAO, and written reports on social inclusion of older persons in South Asia and food and nutrition security. For last 20 years, she has been working in areas which are women empowerment, sustainable community-based interventions, retirement planning, holistic health, and spiritual rejuvenation, etc. She has been invited to participate and give presentations in several national and international forums in more than 8 countries in various socioeconomic issues. She has edited 2 books titled Active Aging in the New Millennium and Coping with Aging, Emerging Trends in India and South Asia. She has set up India's first regional resource and training center on aging project under aegis of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, that provides old age care related services in 7 states in North India. She has been awarded with National Gold Karmavir Chakra Award in India. She has received Top 20 Global Women of Excellence 2019 Award at 7th Annual Congressional International Women's Day celebration in March 2019 in Chicago, USA. And she has been awarded Double Helical National Health Award 2019 for exceptional contribution in geriatric care. So thank you so much for joining us today, ma'am. Floor is yours. Yes, I just wanted to test, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, okay, fine. Anjali, you'll have to slightly adjust your camera because I can't see you. I can only read your name, but I can't see you. So it'll be my loss if I'm not able to see you from thousands of kilometers away also. No, you can see me now, then I'll be Yes, yes. sometime. Yeah. Yes, I can see you now. Yeah. So good evening to all of you and नमस्कार. आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के सेशन में मुझे आपने आमंत्रित किया और पूरी इंटरनेशनल लॉन्जेविटी सेंटर इंडिया की टीम का, स्पेशली अंजलि जी का मैं बहुत बहुत सादर नमस्कार और अभिनंदन करती हूँ कि आपने, और आपको कांग्रेचुलेट भी करती हूँ, बधाई भी देती हूँ कि आपने इस लॉकडाउन के पूरे समय में एल्डरली एम्पावरमेंट, एल्डरली वेलफेयर को मुख्य थीम बनाकर बहुत ही अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर बहुत यूजफुल सेमिनार्स किए. So I also want to share with you that we have shared this link with our all the senior citizens associations of North India. So some are gradually joining in. और इसमें हमारे कुछ जो ग्रांटी एनजीओज हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, वो भी इसमें आज एड ऑन इस सेशन में होंगे. पिछले लगभग 7-8 महीनों में जब से लॉकडाउन लगा और कोरोना की समस्या आई, तो जून के बाद से एक सुनामी सी आ गई वेबिनार्स को लेके और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को लेके. It has been, I will say, a positive development also because there are many people who were only using their smartphone earlier for only WhatsApp or for Facebook. Now it has resulted in making our senior citizens very tech savvy also. So I think there are some plus points to the entire episode. I have put together some videos and some presentation, some PowerPoint today because I didn't want it to be like a monologue. सिर्फ एक लेक्चर देने से बहुत बोरियत हो जाती है, तो आपको बीच बीच में कुछ जानकारी भी देंगे हम वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए और कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे
जो पिछले 20 साल में हमने जो काम किया खासकर बुजुर्गों के लिए और स्पेसिफिकली एल्डरली विमेन के लिए, तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक महाराष्ट्र से जुड़े हैं उनका भी मैं अभिनंदन नमस्कार स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। I have been a very old disciple and student of Dr. गोखले। हम सभी की शुरुआत हम छोटे छोटे पौधे थे और उनके आशीर्वाद से, उनकी शुभेच्छा से हम लोग आज वही हैं, मतलब उनकी शुभेच्छा से हम बहुत आगे अपनी लाइफ में पहुंच सके। So I would just share some information starting with a small video. Yashoda, is it visible? Can you please confirm? Yes, ma'am, it is visible. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझको। मैम विजिबल है, आप फुल स्क्रीन कर सके तो अच्छा होगा। यस मेरी तरफ से फुल स्क्रीन है। ओके मैम, या वी कैन सी इट एंड वी कैन रीड इट आल्सो। थैंक यू। यस Yes, I just wanted to share with everybody कि लगभग 20 वर्ष पहले जब मैंने अपना काम उत्तराखंड राज्य में शुरू किया, तो मेरा जो सबसे पहला स्टार्ट पॉइंट था वो वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ महिलाओं के ऊपर ही रिसर्च, सर्वे और कुछ इंटरवेंशन प्लान्स गांव के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के ऊपर मेरा मुख्यतः फोकस रहा है।
तो इसी के चलते जो वहां पे यात्रा शुरू हुई एल्डरली वुमेन के काम को लेके उत्तराखंड से, वो उसके बाद हमने कई 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 राज्यों में उनके ऊपर डेटा कलेक्शन किया, उनके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च किया, उनके लिए इंटरवेंशन प्लान्स बनाई और कई कई डिफरेंट तरह के हमने उन पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपने अभी वीडियो के रूप में देखा। मैं अब आपके साथ जो हमारी रिसर्च स्टडीज को कंपाइलेशन करके एक हम लोगों ने प्लान तैयार की है, और 20 वर्षों में जो हमने इस खास करके एल्डरली वुमेन के मुद्दे पे जो कार्यक्रम किए, काम किए, क्या चैलेंजेस हैं, और what are the different suggestions, what are the different way forward, which is what is the overall vision that we can do for empowering older women and also learning from them at the same time, that I will be putting before you. मेरा माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, और यदि आपके कुछ सवाल हो तो कृपया आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या मुझे रोक के आप पूछ भी सकते हैं. So I will just request my team. Yashoda, is my screen visible? Yes, ma'am. You can see the screen now? Yeah? Yes, ma'am. Yes. Okay, Yes, okay, absolutely fine, fine. fine. Yeah, thank you. Okay. तो आज का विषय जो मुझे बोलने के लिए कहा गया वो था एल्डरली वुमेन एंड द चेंज दे कैन मेक. किस प्रकार के बदलाव या किस प्रकार के चेंजेस वरिष्ठ महिलाएं ला सकती हैं. पहले मैं सोच में पड़ गई कि मैं इस विषय पे क्या लिखूं या क्या बोलूं, क्योंकि हम जब से जन्म लेते हैं और पूरा हमारा जो लाइफ साइकिल चलता है और उसके अंत तक जो पूरी जीवन यात्रा होती है, उसमें वरिष्ठ महिलाओं का जो एक इम्पोर्टेंट योगदान होता है हमारे जीवन के हर क्षण, हर प्रति क्षण में, वो आप सभी उससे भली भांति Ma'am. Abba, ma'am? Temalata, she's gone now. No, no, she's there. She's there. Yes. Huh. Ma'am, can you please repeat the sentence? There was some slight internet problem. इंटरनेट प्रॉब्लम. अच्छा, ठीक है. अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ? Continue, please. अच्छा, जी जी. मैं ये कह रही थी कि हमारी जो पूरी जीवन यात्रा है उसमें बचपन से लेकर आखिरी तक जो वरिष्ठ महिलाएं हर क्षण, हर हर उम्र में अलग अलग प्रकार के जो वो रोल्स हमारी लाइफ में प्ले करती हैं, वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट हैं. पैदा होते समय नानी और दादी हमें बहुत ही प्यार, प्योरी अफेक्शन, बहुत ही संस्कारों से हमारा भरण पोषण करती हैं, पालन करती हैं. हम उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं और लाइफ में और बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं. उन्हीं के नजरिए से हम अब जिंदगी को देखना शुरू करते हैं. जस्ट अ मिनट, वंदना, कैन यू क्लोज द डोर प्लीज? ओके. और फिर जब हम आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब सास के रूप में या दरिया सास के रूप में भी वो हमारा पग पग पर मार्गदर्शन करती हैं, हमें ट्रेन करती हैं गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. वो सब हमारा उंगली पकड़ के हमें नए जीवन में, नए रोल्स में ढालने का काम एल्डरली वुमेन करती हैं. और जब हम 40s या 50s की ओर जाते हैं और हमारे पेरेंट्स भी 60 प्लस हो जाते हैं, तो तब हम माँ का एक अलग स्वरूप देखते हैं, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ पर्सन हु गिव्स यू विजडम, हु शेयर्स विद यू एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव कलेक्टेड ऑल देयर लाइफ. तो मैं
ये कहना चाहूंगी कि एल्डरली विमेन कोई ऐसा नहीं है कि वो जब 60 साल की हो जाएंगी या 70 साल की हो जाएंगी तभी चेंज लाती हैं। आई थिंक एक महिला अपनी पूरी जीवन यात्रा में ही एक टीचर का, एक मेंटोर का, एक एंकर का रोल प्ले करती है। तो आगे चलने के लिए यस, I would, as you all saw, that my journey with elderly women began about 20 years ago when I started working in Uttarakhand, Dehradun. और वहाँ के गांव के क्षेत्र में रहने वाली वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के साथ मैंने बहुत रिसर्च किया, उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा कि वो कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में रह के भी घंटों खेत में काम करना, घास काटना, चूल्हे के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, पशुओं का देखभाल करना, फिर घर आने के बाद घर का सारा काम करना। तो मैं वहां पे गई थी प्रोडक्टिव एजिंग के ऊपर रिसर्च करने, और वापस जब मैं लौटी कुछ महीने बाद दिल्ली, तो मैंने ये समझा, ये मैंने सीखा कि प्रोडक्टिव एजिंग तो ऑलरेडी वो कर ही रही है। I think my voice is resounding, Yashoda. Is that right? No, I think there was some person who was unmuted. Ma'am, please अच्छा, continue. I'll check. मुझे लगा हाँ. कि आवाज रिसाउंड कर रही है, हाँ, पर हाँ. मेरी आवाज क्लियर है अंदर? Yes, ma'am. ओके। सो वन मेजर देखिए, मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन का एक लाइन में अगर सार बताऊं तो चाहे वो एक्टिव एजिंग हो, प्रोडक्टिव एजिंग हो, हेल्दी एजिंग हो, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, ग्रेसफुल एजिंग हो, all of that is personified by elderly women in different stages of old age that they go through. So these are the stages that we have tried actually to study in the last 20 years or so. So the journey has been long and very eventful. एक नजर हम डालेंगे कि what are the major trends, what are the major numbers, what are the major statistics concerning elderly persons in India. आप जैसे आपने काफी सारे वेबिनार्स अटेंड किए, तो आपने अभी तक जान गए होंगे कि लगभग 14 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भारत में हैं, और इसका एक जो ओवरवेलमिंग नंबर है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है बाय एल्डरली विमेन। व्हाई? बिकॉज as per the longevity trends, as per the life expectancy, they live longer than men. उनकी संख्या ज्यादा है, और इस संख्या में अगर हम देखें तो उसमें से बहुत बड़ा तबका रहता है गांव क्षेत्र में। उसमें भी अगर आप देखें तो महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा इलिटरेट है। ये सब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नंबर, इनका आगे जाके एक लिंकेज निकलेगा जो मैं आपको अभी आपके सामने रखूंगी। अगर वो अशिक्षित हैं, ज्यादा संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, तो जैसे मैंने अपने अलग अलग शोध कार्यों में देखा कि उसमें से ज्यादातर महिलाएं फिजिकल लेबर या होम मेकर के रूप में ही कार्य कर सकती हैं। और एक जो चिंता का विषय इसमें आया, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर विडोज एंड फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उससे क्या समस्याएं आती हैं? Many of them face financial problems, loneliness, and lack of any social support in majority of their life. अगर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँ, elderly men and elderly women, they all go through these problems and challenges in their life, whether it is social isolation. आजकल अकेलापन जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, और मेरे ख्याल से कोविड आने के बाद तो आइसोलेशन 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 ये सुन सुन के हम दिमागी रूप से ही आइसोलेट हो गए हैं। अब बाहर जाने में भी डर लगता है। अब वो याद ही नहीं है कि पिछली बार पार्क में बैठ के सबके साथ लाफ्टर सेशन कब किया था या योगा सेशन कब किया था। वो सब ऐसा लगता है विस्मृति होती जा रही है। मुझे एक मैसेज आया है, कांट हियर हर। So I want to know the IT support team. I mean, are you able to hear me or not able to hear me? Ma'am, you're absolutely clear, and
अच्छा, शायद किन्हीं There is और no की वजह problem. से We किसी can का hear, we नेटवर्क can कम hear. होगा। अच्छा, Yes, ma'am. ओके। Yeah. तो ये जो मैं समस्याएं आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब वरिष्ठ जो मेल्स होते हैं, एल्डरली मेल्स होते हैं, समस्याएं उन्हें भी आती हैं, पर इनका जो इम्पैक्ट है वो महिलाओं पे एटलीस्ट डबल ज्यादा होता है। और वो क्यों ज्यादा होता है वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। जेंडर डायमेंशंस, स्पेसिफिकली एजिंग की जो जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि एक महिला जब उसका जीवन चक्र शुरू होता है तभी से वो अलग अलग रोल्स में ढलती है, कभी बेटी के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में। शी हैज टू प्ले मल्टीपल रोल्स, एंड while playing these multiple roles, it is known and it is seen Indian women are conditioned to put family first and their own concerns later on. तो एक एक समय आता है जब वो उनकी शारीरिक क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं, वो फ्रेल हो जाती हैं, पारिवारिक सदस्यों पे वो ज्यादा निर्भर, डिपेंडेंसी रेशियो is found very high among elderly women as compared to elderly men. शारीरिक क्षमताएं जैसे जैसे कमजोर होती हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं। मैं जब गांव में काम कर रही थी, अलग अलग गांव में, चाहे वो गुजरात था, चाहे उत्तराखंड था, कहीं पर भी जहां मैं काम कर रही थी, तो मैंने अक्सर ये पाया, अब ऑफ कोर्स स्थिति बदली है, पर पहले मैंने जब बहुत ही रिमोट एरियाज में मैं काम करती थी तो मैंने वहां स्टडी किया कि सालों तक वो जो चूल्हे की लकड़ी जलाती हैं उससे आंखें उनकी बिल्कुल, बाय द टाइम दे आर रीचिंग 60-65 देयर आईज आर गॉन। majority of them, 80% of them are suffering from cataract. अब अगर माइग्रेशन है, बच्चे और परिवार साथ में नहीं रह रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक वृद्ध महिला को डॉक्टर के पास कौन लेके जाए, उसके पास सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, उसके पास केयर गिवर्स नहीं होते, क्योंकि पूरी ताउम्र वही केयर गिवर बन के परिवार में काम करती हैं। और जब उनका समय आता है देखभाल का, तो या तो केवल बहू घर पे होती है या छोटे पोता पोती, तो उसमें उस समस्या में एक्सेसिबिलिटी to healthcare becomes a major problem, which further gives rise to more diseases. That is why they say aging for women. ये एक सिनोनिमस हो गया है, एक ट्रिपल जियोपार्डी टर्म आ गई है कि एक तो उनकी जिंदगी के स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स बढ़ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ जाता है, पहले भी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, और जब शरीर कम साथ देना शुरू कर देता है तो बेटे पे, बेटियों पे, बाकी पारिवारिक सदस्यों पे उनकी निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाती है। और फैमिली स्ट्रक्चर में देखिए, अब तो आप सभी जानते हैं, इवन जो छोटे शहर हैं वहां से भी पलायन हो रहा है बड़े शहरों की तरफ। मुंबई और पुणे तो इसका जीवंत, दिल्ली भी इसका जीवंत उदाहरण ही है। तो पीछे रह जाते हैं बुजुर्ग माता पिता और खासकर बुजुर्ग महिलाएं, जिनकी देखभाल की बहुत ज्यादा अब जरूरत होती है। आइसोलेशन or insufficient subsistence are the natural examples reaching coming out of the migration. और एक और मैंने करीबन जब मैं गढ़वाल में थी उत्तराखंड में, तो आई इंटरव्यूड मोर देन 1000 women। तो एक जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो उन्होंने एक प्रॉब्लम बहुत जोर से हाईलाइट की हमारे साथ, वो उन्होंने कहा कि हमारा तो यूटिलिटी ही खत्म हो जाती है जब हम बिस्तर पकड़ लेते हैं या हम काम नहीं कर पाते बाहर का, या तो घर के बाहर का या घर के अंदर का, दोनों ही स्थिति में हमारा लॉस ऑफ सोशल रोल, लॉस ऑफ रिकग्निशन, लॉस ऑफ पावर एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। तो ये शिफ्ट ऑफ रोल जो होता है वो उनके लिए मेंटली एडजस्टेबल कई परिस्थितियों में नहीं हो पाता। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा विशेष सर्कल है, जैसे आप अब देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि एक बर्डन की जैसे खुद को फीलिंग आना शुरू कर देना, खुद को अनवांटेड फील करवाना। डिपेंडेंट तो वो इकोनॉमिकली पहले भी थी, और जब वो उनकी एज बढ़ जाती है, बाहर काम भी नहीं कर पाती, चाहे खेत में, चाहे दुकान में, चाहे कोई और भी वो काम करती हूँ, चाहे वो जॉब करते हो, तो वहां से भी रिटायर हो जाते हैं, तो ये सब समस्याएं उनकी शुरू हो जाती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी पाया गया, क्योंकि वो पूरी उम्र खेत में बहुत काम करती हैं, पीठ पे बोझा होती हैं, जानवरों का उन्हें काफी काम करना पड़ता है, पशुपालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस वाज फाउंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अमंग एल्डरली वुमेन। दूसरी, कैल्शियम इंटेक बहुत कम होता है, दूध वो कभी पीती नहीं है, बच्चों को, पोतों को, बहू को, बेटियों को दूध दे दिया जाता है, अपने अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को वो हमेशा इग्नोर करती है। कैल्शियम इंटेक नहीं है, आयरन इंटेक नहीं है, जो साग सब्जी जो लोकली पाई गई वही वो खाती हैं। सप्लीमेंट्स, एटलीस्ट मेजॉरिटी जो हमारा तबका है, अर्बन एरियाज और एजुकेटेड वुमेन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर मेजॉरिटी ऑफ अदर वुमेन from small towns, from slum areas, from low economic and low education areas have no knowledge and information about how they should take care of their own health after menopause or after they become 60 years old. तो physically fragile होती हैं, यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो एक अंदर ही अंदर वो और ज्यादा आइसोलेशन की तरफ जाने लगती हैं। अब ये जो मैं कुछ चीजें आपके साथ परेशानियां या चैलेंजेस शेयर कर रही हूँ, वो सबके लिए एक समान नहीं होते। हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो अच्छे परिवारों से, अच्छे इकोनॉमिक स्ट्राटा से, अच्छे एजुकेशन स्ट्राटा से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम देखें तो ये तीन अलग अलग तरह के हेट्रोजेनिटी, अलग अलग तरह के प्रकार पाए जाते हैं इवन इन अमंगस्ट एल्डरली वुमेन। पहला हो गया अर्बन हाई मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, जो फिट हैं, हेल्दी हैं, दादा दादी या नाना नानी पार्क में जाती हैं, कहीं स्कूल से या किसी बैंक से या किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, सोशली इकोनॉमिकली एडिक्वेट हैं, अगर वो चाहें तो परिवार उनके लिए नर्स रख सकता है या कोई केयर गिवर रख सकता है, और 60 से 75 साल की जो उनकी उम्र होती है बहुत एक्टिव होती है। दे आर दोज happening daddies which are accompanying to the mall or to the gym। वो एक अलग हमारा जो अमूमन हम देखते हैं वो टारगेट ग्रुप है। दूसरा आता है मार्जिनलाइज्ड, जिसकी मैंने अभी बात की, जो गांव में या छोटे शहरों में या और लो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से या रिमोट ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो फ्रेल हैं, कमजोर हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के मुताबिक, या जो मैंने बाकी चीजें आपसे शेयर की, और उनकी, और सबसे ज्यादा इसमें जो 75 साल से ऊपर का एज ग्रुप है, अगर उन्हें कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई तो वो ज्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाती है। जो हमारा तीसरा ग्रुप है वो आता है जो रूरल, ट्राइबल, माइग्रेंट, स्लम ड्वेलर्स, मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली एबल्ड एंड 80+। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल एज ग्रुप है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो अक्सर ये पाया गया है कि जो उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, इनिशियली from the age of say 18 years to about 35 years, they are busy in their work, in their economic activities, या तो करियर वुमेन होती हैं या बाकी उन चीजों को देख रही होती हैं, बाहर काम करना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भरण पोषण, तो उसमें the priority is very different. So regular diet, regular exercise is usually ignored. This is a global data trends usually ignored by elderly women. इस वजह से जब वो 60, 65, 70 की तरफ आती हैं तो अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस उनकी नॉर्मली ऑन द अपस्विंग होती हैं। इसमें भी क्या होता है कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम स्टे डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, तो वो रेगुलर मेडिकल केयर, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या तो लेती नहीं है, तब तक नहीं लेती है जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिवियर नहीं हो जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने अपने घर में भी देखा है, अपनी दादी के साथ, नानी के साथ, अक्सर हम मम्मा के साथ मैं देखती हूँ कि आई फील, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने अक्सर जो देखा है कि women are conditioned
to ignore their own needs. They are socialized, they are conditioned. कह रहे हम तो ठीक हैं, चलो दवाई खा लेंगे, रात में आराम कर लेंगे, एक पैरासिटामोल खा लेंगे, सवेरे काम पे लग जाएंगे, अपनी जो उनकी जरूरतें हैं उनको वो लगातार इग्नोर करते हैं। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तीसरी, वैसे ही जेरियाट्रिक केयर के बारे में जो जागरूकता है या जानकारी है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर या कम्युनिटी हेल्थ केयर लेवल पर बहुत कम है। तो महिलाओं के बारे में, एल्डरली विमेन के बारे में जानकारी तो और भी ज्यादा कम है। जैसे कि मैंने आप सबके साथ पहले शेयर किया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप सब जानते हैं और हमने इसके बारे में बहुत कहानियां पढ़ी हैं, मूवीज देखी हैं, सीरियल्स भी देखी। Right from the female feticide and infanticide, gender discrimination starts. And it continues till the woman is on the deathbed. वो तब तक किसी ना किसी रूप में चलता ही रहता है। और ये ज्यादातर हम देखते हैं जो पॉवर्टी रिडन हाउस होल्ड होते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं, जहाँ संसाधनों की बेहद कमी होती है। और संसाधन कम हो या ज्यादा, मेरे ख्याल से सही प्रकार के संस्कारों की बहुत कमी होती है। संस्कार यदि हमारे सही हैं, हमारी प्रायोरिटीज सही हैं, तो संसाधन मायने नहीं रखते। और अक्सर देखा गया है, यू सी द स्क्रिप्चर्स, यू सी अदर थिंग्स ऑल्सो, प्रायोरिटी कहाँ दी जाती है जब भोजन किया जाता है? सबसे पहले यंग मेल्स को, उसके बाद बच्चों को, उसके बाद शायद यंग महिलाओं को, बाद में कहा जाता है कि अच्छा ये लीजिए आपके लिए। तो many times it was noticed, especially in our rural studies, that elderly women often had to forego their share of food. वो रोटी नमक खा के भी गुजारा कर लेंगे। जो अच्छी चीज है, फल है, दूध है, शाक है, सब्जी है, वो हमेशा चाहती हैं कि बच्चे पहले खाएं। अब एक तो पुअर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, तीसरा क्रॉनिक इल हेल्थ, चौथा धीरे धीरे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज श्रिंक होते जा रहे हैं, हमारा जो एक बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस बिगड़ता जाता है। सी विमेन आर मोस्टली, इफ यू सी इन मोस्ट ऑफ इंडिया, दे आर द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। दे आर द वंस हु आर कदम से कदम मिला के वो अपने घर वालों के साथ, वो चाहे आप धान की बुआई हो, कटाई हो, खासकर मैं आपको पहाड़ी इलाकों का बोलूं, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में वहां पे एग्रीकल्चर संभालती हैं। तो श्रिंकेज है नेचुरल रिसोर्सेज की, बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस बिगड़ चुका है। और फिर जो मैंने कहा, इंक्रीजिंग फैमिली फ्रेगमेंटेशन, बहू, बच्चे, बेटा सब शहरों की तरफ आ गए हैं, तो फिर उनके लिए अपना ध्यान रखना और भी मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, मैंने एक स्टडी की थी, उसमें ये पाया गया था कि पढ़ाई लिखाई से उनका जो शैक्षणिक स्तर है और उनका जो ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल है, इसका भी उनके न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी या माल न्यूट्रिशन, जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास कोई भी इकोनॉमिक या सोशल साधन नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा पाया गया है। महिलाएं सभी घरों में खाना संजोने की, खाना बनाने की, खाना परोसने की, न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन करने की जिम्मेदारी तो लेती हैं परिवार के लिए, पर वो अपने लिए कितना कर पाती हैं, ये एक प्रश्न है। अगर जहाँ पे हम उनको चेंज मेकर्स के रूप में अगर देखें या कंट्रीब्यूटर्स के रूप में अगर हम देखें, तो आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हर्बल मेडिसिन के बारे में, होम रेमेडीज के बारे में, इनसे ज्यादा दादी नानी से ज्यादा होम रेमेडीज के बारे में, खाने की वैरायटीज के बारे में किसी को और जानकारी होती ही नहीं है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, क्राफ्ट्स, पुरानी सिलाई कढ़ाई, अलग अलग प्रकार के अचार पापड़, अलग अलग तरह की डिशेस। अब तो वी आर मैगी 2 मिनट्स हो गया, पैक्ड जनरेशन, MTR फूड पैकेट्स। हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन तो सिर्फ वही जानती है। और इतनी सारी जो इनकी नॉलेज है फूड को लेके, कस्टम्स को लेके, पुराने बिलीफ्स को लेके, वो धीरे 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 वैनिश होती जा रही है। तो मैं
आईएलसी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अनुग्रह के साथ मिलके या बाकी संस्थाओं के साथ मिलके हमें एक प्रयास करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा, क्योंकि मैं बचपन से एक महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड के मेरे नेबर्स थे, उनके साथ में बड़ी हुई, तो मैंने वहां देखा कि द रिचनेस ऑफ फूड इज, ऑफ कोर्स आई मीन आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉर्थ इंडिया में रिचनेस ऑफ फूड नहीं होता, पर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्रियन फूड हैज समथिंग वेरी स्पेशल डिशेस, वेदर इट इज पूरन पोली और गुजरात में ऊंधियो होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आजकल की जनरेशन को आती ही नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ एफर्ट होना चाहिए कि हम उनकी रेसिपीज को, उनके नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर सके, ताकि उनके साथ वो नॉलेज लुप्त ना हो जाए और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनकी लाइफ एनहेंसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम सही मायनों में वैल्यू कर पाए। तो इसमें हमें ये भी देखना है कि उनकी गरिमा किस प्रकार से मेंटेन हो, सो दैट दे आर रिस्पेक्टेड, देयर विजडम इज कंसल्टेड, देयर एक्सपीरियंसेस आर रिकग्नाइज्ड, सेल्फ रिलायंट तो वो आखिरी समय तक रहती है। उनको हाथ पकड़ के चलना बिल्कुल भी गंवारा नहीं होता, वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के खुद चलना चाहती हैं। उल्टा बच्चों को जरूर वो सहारा देने को तैयार है, और अपना समय किस प्रकार से प्रोडक्टिवली पास करना है उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अनुग्रह के जो हमारी संस्था है जिसके मैं चेयरपर्सन हूँ, उसके अलग अलग जो हमारे डे केयर सेंटर्स चलते हैं उसकी तस्वीर है। ये नानी दादियां हैं सभी, ये एनवायरनमेंट डे के फंक्शन पे ये पेड़ों की तरह से सजी हुई हैं एंड दे आर डूइंग अ डांस ड्रामा। दूसरी जगह ये हमारा देहरादून के सेंटर में ये कुमाऊनी डांस कर रही हैं, दे डांस ऑन डीजेज। ये एक मैं अलग पिक्चर अब आपको दिखा रही हूँ उनके एक्टिव, प्रोडक्टिव और हेल्दी होने की। ये जो हम एनुअल वॉकाथॉन्स करते हैं हर साल, उसमें बहुत बड़ी संख्या में वरिष्ठ महिलाएं, चाहे वो वॉकर से चलें, चाहे वो स्टिक से चलें, चाहे वो अपनी साथ सहेलियों के साथ चलें, बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी देती हैं। और इधर आप नीचे तस्वीर में देखिए, यहाँ पर वो संवर्धन का काम तो हर महिला करती है, प्रकृति का स्वरूप ही महिला है। यहाँ पर अगर आप उन्हें देखें तो यहाँ पर भी वो अपना कार्य कर रही हैं। अब मैं आती हूँ, तुरंत आपको कुछ सजेशंस बताना चाहती हूँ ताकि कुछ सवाल हो तो मैं बाद में ले पाऊं। सबसे अहम, यहाँ पर शायद मुझे कुछ वरिष्ठ महिलाएं भी सुन रही हैं, कुछ एनजीओज भी सुन रही हैं, और पता नहीं शायद कुछ यूथ भी सुन रहे हैं। तो आई वुड से प्लानिंग फॉर ओल्ड एज विच शुड नॉट स्टार्ट आफ्टर 50 बट विच शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अपने लिए बचत रखिए, अपनी सेविंग्स रखिए, अगर आप होम मेकर भी हैं तब भी अपना कुछ ना कुछ अलग से अपने लिए बचा के रखिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, समय समय पर चेकअप्स करवाइए, सिचुएशन एग्रवेट ना हो तब तक आप वेट मत करिए। दूसरा, सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए ये जरूरी है कि जेंडर बजटिंग की जाए, जेंडर ऑडिट किया जाए। बाकी सभी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में स्पेशली एल्डरली विमेन का जो नीड्स हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको जरूर उसमें इंक्लूड किया जाए। और जैसे आज का कार्यक्रम था पार्टनरशिप ओरिएंटेड, आईएलसी के साथ जुड़ के और आपकी जो महिला समूह हैं, सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, तो उनके साथ भी मिलके काम किया जाए। इस पे जो फ्यूचर रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं वरिष्ठ महिलाओं के लिए, वो एक बहुत जरूरी जो सभी के लिए है, नॉट ओनली फॉर एल्डरली, कि एजिंग इन प्लेस, जहां पर वो हैं, जिस घर में वो हैं, उनको वहां से, जैसे अगर कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, कोई देखभाल का नहीं है, तो ही उन्हें ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया जाए, अगर कोई भी नहीं है सपोज उनके साथ। अदरवाइज जहां पर वो हैं उसी स्थान पर अगर वो ओल्ड एज की तरफ प्राप्त होती हैं या अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल ऑल्टरनेटिव एंड सिचुएशन फॉर देम। एंड फर्दर, अलग थलग ना रहें, अपने को समूहों में बांटें, समूहों को जो ज्वाइन करें, आसपास की महिलाओं के साथ जरूर समय बिताएं, चाहे पार्क में, चाहे कैसे, एक बार कोविड ठीक हो जाए उसके बाद। अदरवाइज फोन पे आप आपस में बात करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, आपस का हाल चाल पूछिए, मतलब कम्युनिटी के साथ आप लोग डेफिनेटली कनेक्टेड रहिए।
कुछ मैं मोस्टली मैं चीजें आपके साथ बांट चुकी हूँ, पर प्रोडक्टिव एजिंग जो मेरा मेन टॉपिक रहा, और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेरी पीएचडी का भी यही टॉपिक रहा। तो इसमें मैं आपसे सभी ये जानते हैं कि जैसे मैंने पहले शेयर किया कि एल्डरली वुमेन, एक एक मुझे सेंटेंस याद आता है जो मुझे बहुत महिलाओं ने कहा जब मैंने अपना करियर शुरू किया गढ़वाल में, जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया। तो वो अक्सर कहती थी कि बेटा, प्रोडक्टिव एजिंग इज नॉट अ चॉइस फॉर अस, प्रोडक्टिव एजिंग इज अ कंपल्शन फॉर अस। अगर हम काम नहीं करेंगे, हमारे हाथ पैर चलते नहीं रहेंगे, तो हम शाम को खाएंगे क्या? बहू हमें शाम को खाना कैसे देगी? हम अपने पशुओं को क्या चारा खिलाएंगे? पानी कहाँ से भर के लाएंगे? तो मेजॉरिटी जो हमारी है देश की जनसंख्या, उसके लिए प्रोडक्टिव एजिंग एक लग्जरी नहीं है, उनके लिए वो एक कंपल्शन है। इसीलिए मैं ये सवाल सभी के लिए पूछना चाहती हूँ, क्या ओल्ड एज का मतलब रिड्यूस्ड कैपेसिटी है? क्या ओल्ड एज का मतलब डिसेबिलिटी है? क्या ओल्ड एज का मतलब अकेलापन, उदासी, डिस्पेयर है? क्या ओल्ड एज का मतलब ड्रजरी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इतने एग्जाम्पल्स देखते हैं, इतना कुछ देखते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, हम देखते हैं कि एल्डरली विमेन वो तो खजाना है, वो तो खान है हमारे। जैसे कि मैंने शेयर किया अभी, ट्रेडिशन की, नॉलेज की, स्किल्स की, कल्चर की, इतना कुछ है जो हम उनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो अपने परिवारजनों के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, अपनी बेटियों बहुओं के साथ, दे आर ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। दे आर द कोहेजन, दे आर द ग्लू, दे आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली। एंड दे पूरी उम्र दे आर वर्किंग एज केयर गिवर्स, एज वॉलंटियर्स, एज मेंटर्स एंड एज एक्टिव सिटीजन्स। मुझे लगता है एक्टिव एजिंग की इनको तो बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। शायद ही कोई महिला होगी, शायद ही कोई बुजुर्ग महिला होगी जो लीजरली केवल बेड पे बैठेगी और विलिंगली एक्टिव नहीं रहना चाहेंगी या काम नहीं करना चाहेंगी। इसीलिए जो रिटायर भी हो जाती हैं, वो चाहे सुपर एनुवेटेड हो, पर वो अपनी सेकेंड इनिंग्स को शुरू करती हैं। वो अपने, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा भी कहीं पे, लॉकडाउन में एक 84 इयर्स की महिला, पंजाब की, चंडीगढ़ की रहने वाली, और उन्होंने घर पे बैठे बैठे उनको आइडिया आया, उन्होंने अपनी पोती को बहुत अच्छे अच्छे वो जैम्स, मार्मलेड, अचार बहुत बेहतरीन बनाती थी। तो उनकी पोती भी बंद थे लॉकडाउन में, तो घर पे आई नहीं थी, तो उन्होंने खाए। तो उन्होंने आइडिया दिया कि दादी, इसका हम स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू करते? और उन्होंने मिलके दे स्टार्टेड होम डिलीवरी ऑफ दीज मार्मलेड्स एंड पिकल्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो ऑर्गेनिक थे, जो हेल्थ फ्रेंडली थे, जो न्यूट्रिशन बेस्ड थे। और उसके देखा देखी बहुत हमने पिछले दिनों एग्जाम्पल्स पढ़े, जिसमें एल्डरली विमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में के सामने आई वो। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि मुझे टॉपिक दिया गया था कि व्हाट चेंज दे कैन मेक। सो आई थिंक सजेस्ट करना चाहूंगी कि वो किस प्रकार के, अगर 60 साल के बाद, 75 साल के बाद, एनी टाइम इन लाइफ they want to do something apart from home care role, as a homemaker's role, तो बहुत कुछ कर सकती है। जो एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो भी उनकी लाइकिंग हो, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा शुरू कर सकती है, अपने किसी ग्रुप को मिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत कर सकती है, लाइक माइंडेड महिलाओं के साथ मिलके। जो पहले करने का समय कुछ मिला, रिसर्च है, कहानी लिखना है, किताब लिखना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है, अपना वीडियो यूट्यूब बनाना है। एक अभी हमने दादी का इतना बेहतरीन वीडियो देखा जिससे उन्होंने 60 साल के बाद योगासन करना सीखा, एंड शी गॉट प्रेसिडेंट्स अवार्ड आई थिंक लास्ट ईयर एट द एज ऑफ 82। इज टीचिंग योगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, आगे एजुकेशन पढ़ने के लिए। मैसूर में एक महिला थी, पीएचडी किया उन्होंने एट द एज ऑफ 79 और सो। बचपन से गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम किन की सुनते आ रहे हैं? नानी और दादी से ही हम गाइडेंस लेते हैं, वही वही काउंसलिंग हमारी करती हैं। सो दे कैन एक्ट एज एक्सीलेंट काउंसलर्स in NGOs, in
schools, in education institutions. दूसरा, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का भी उनका बहुत अहम, दे कैन एक्ट एज मास्टर ट्रेनर्स, दे कैन ट्रेन फर्दर जनरेशन. बहुत 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 सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इनके लिए करने के लिए बहुत कुछ है. 60 साल पे उम्र खत्म नहीं, शुरू होती है. दूसरा, हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं और शिकायत बहुत करते हैं कि ये इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है. तो they can also act as change makers. They can act as change makers. They can liaison, right? Like problem with I think somebody is unmuted maybe. Yeah. With the government and civic agencies. और सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ अब ऑलमोस्ट अंत में शेयर करूंगी. 2-3 वीडियोस आपको दिखाऊंगी मैं, जिसमें मैं ये शेयर करूंगी what elderly women can do और what change they can do. ये सब तो हमने देख लिया. अक्सर जब मेरी मदर से ये पूछा जाता है कि अरे अब तो आप रिटायर हो गई, तो शी इज एन एजुकेशनिस्ट, 42 साल उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में काम किया, और अब जब उनसे पूछा जाता है कि अरे अब आप क्या करती हैं, अब तो आप बोर हो जाती होंगी, तो बहुत ही बेहतरीन वो जवाब देती हैं और वो कहती हैं आई एम. This is another aspect of grandmothers and grandfathers. ये हमारे दिल्ली में अनुग्रह सेंटर पे फैशन शो हुआ था. ये तो आंटी के आज जमीन के पैर ही नहीं दिख रहे हैं. क्या बात. मुझे तो लगता नहीं किसकी दादी नानी है, तो बिल्कुल ही यंग लग रही है. आई आंटी क्या बात. These are all grandmothers. These are all grandmothers, as you can see. मैडम आपका आवाज, आपका जो माइक है वो Abba, you're muted. हाँ. हाँ. No, you can hear me now.
Yes, And you yes, can hear me now. yes, I'm not yes, muted, yes, right? madam. Oh, yeah, you. Yeah, so I mean, I just wanted to give you a glimpse of different types of changes that elderly women can bring, and there's a whole lot of a difference between, as I said, कि there is a lot of heterogeneity. अर्बन एरियाज में बिल्कुल अलग सिचुएशन है और रूरल एरियाज में अलग है. हर एक जगह के प्लसेस और माइनसेस अपने हिसाब से होते हैं, बट दिस इज अ ब्रॉड पिक्चर व्हिच आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू. Thank you so much, Abha. I think Yashoda is having some range issues at her place. So, मैं पूछ सकती हूँ, if anybody wants to ask Abha some questions, please go ahead. Sushant, can you coordinate it, please? Yeah, Yashoda is back. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. Yeah. Okay. अब मुझे लगा मेरी तरफ से नेटवर्क इशू आ रहा है शायद. No, I no. mean, everybody, I think, is having some very lot. बीच में थोड़ा problem आ रहा था. Yeah, but anyway, now we are back. Okay, thank you so much, Dr. Abha, for a wonderful presentation. If there are any questions, we'll just wait for them. Also, I want to Market. tell you, ma'am, that 15 people on YouTube and 5 people on Facebook are watching this. So if they have any questions, I will let you know. Okay. Yes. Yeah, May, sure. may I ask one question, ma'am? Shinde here. Yes, yes, please. Yes, sir, Sandesh, sir. I wanted to ask, madam, do you have some aid or monetary, backing from government or such organizations? Yes, sir. We are the Anugrah is the regional resource and training center on aging for last 11 years, and we are working under the Ministry of Social Justice, and we are covering about 7 states for North India. तो जो सारा ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, सर्वे, ये सब है कार्यक्रम, हम वो मंत्रालय के सपोर्ट से चलाते हैं. Okay, very good. हेलो आबा जी, नमस्ते. मैं रैना बोल रहा हूँ हरिद्वार से. नमस्कार सर, प्लेजर टू सी यू अगेन, नमस्ते. टू हियर यू अगेन. Very nice. I was listening to you on this presentation. I mean, these are concerns definitely. If you have any suggestions for taking up with the Uttarakhand government, we would like to be sharing with you or partnering with you, or we can also take up with Uttarakhand government, especially about the situation about elderly women in rural areas or on the hills. So it is a concern surely, but we need to do something. It is the problem is there, but what I see is that what is being discussed in Shastri Bhavan is not happening on the ground. I have so many sort of cases like that happening. I would like Anugrah, if you would like to take our help in any way, we would be glad to do it. Thank you. थैंक यू रैना साहब, आप बहुत ही बड़ा नेटवर्क, आपके पास तो बहुत बड़ा रिसोर्स है सीनियर सिटीजन्स का, और डेफिनेटली हमें मिलके ही सर काम करना होगा, क्योंकि अंजलि, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, आई एम श्योर ILC would have also come across this, that in the last 1 year or so, Corona has adversely affected almost all the sections of society. But elderly persons have been badly hit because of this in all ways, financially, emotionally, psychologically, every way. और इसमें जो रूरल एरियाज में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उनकी तरफ तो अभी हम सोच ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं. आप ये स्थिति सोचिए रायना जी, पहाड़ की या गांव की इकोनॉमी टोटली मनी ऑर्डर डिपेंडेंट रही है, और अगर मेजॉरिटी के बड़ी संख्या में जॉब्स का लॉस हुआ है, तो इन लोगों ने बड़ी संख्या में जो यूथ था वापस गांव चले गए. तो मनी ऑर्डर कहाँ से आएगा? उनकी पेंशन्स भी उनको टाइम पे नहीं मिल पा रही हैं. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स तो ग्राउंड पे कितने उतर पा रहे हैं आप सबको पता है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहती. That is really, that's true. So that is a major problem, sir. Anjali, would you like to comment something on this? Yeah, I agree with you, Abha, completely. The rural areas have also been affected, and not many of us realize that, because we are focusing on the urban problems of loneliness and isolation and children being far away.
but the problem is that migration back to the villages, what those problems are, they haven't come into focus. I think you've raised Yes. a very valid point here. I do agree. And I think we need to perhaps, if you agree, Raina Saab is heading a very big organization in Uttarakhand. There are lots of hundreds of senior citizens there. Yes, So yes. we can all come together, like ILC is there, Raina Saab is there. We can access at least the government support being with the Right. ministry. Yes, we need to raise the awareness. Awareness. नहीं है. Awareness. जी sir. We need to मैं- bring into focus these various different concerns that have come or evolved out of this corona pandemic, I think. Among the rural elderly as well. Yes. Yes, Among the yes. rural elderly. आबा जी एक एग्जांपल बताता हूँ. नेशनल एक्शन प्लान में डे सेंटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट्स है और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो उत्तराखंड का है उसको पता नहीं. वो बोलता है डे सेंटर के लिए वही अप्लाई करे जिसके पास टर्नओवर पर ईयर 50 लाख हो. अब बताइए No, एक no, सीनियर no. ये गलत है. ये गलत है. तो मैं आपको मेल्स आई विल सेंड यू द मेल्स. प्लीज सेंड मी. सर एक मिनट. हम लोग जो ये नेशनल एक्शन प्लान पर सीनियर सिटीजन्स है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं. उत्तराखंड गवर्नमेंट को मैंने स्टेट एक्शन प्लान खुद बनवा के दी है. ये कंडीशन गलत है. ऐसा हो ही नहीं सकता. दे हैव टू करेक्ट देम. He changed correct on my saying, he told me later, Mr. Raina, since you are telling, I am making from 50 lakhs to 25 lakhs. अब आप बताइए. Now I will share. I have sent it to Ministry of Social Justice and Empowerment. I would like to send it to you. This is the situation. The right hand does not know what is the left hand. They don't know the meaning of the welfare. Welfare का पता नहीं. Anjali is very lucky, sir. She is not working with the government. I would like to send it to you. This is the situation. We learnt The our right hand lesson. does We not know burnt what our is the hands left a hand. They don't know little. the issues. We will raise these issues and we will get it solved. Anjali is very lucky, sir. She is not working with the government. Yes, sir. Thank you. This is the Anything situation. We learned our lesson. We burnt our Yes, hands a ma'am. little. There is one comment from Malti Dumre. She's from rural area in Maharashtra and she's very active. So, Malti Tayi, please, Vichara. Wonderful to see her. We Wow. learned our lessons. We burnt our There hands. is one comment from Malti Dumre. She's from rural area in Maharashtra and she's very active. थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ में. बाकी ये करेंगे. Wonderful to see her. हाँ जी. आभा मॅडम नमस्ते. आपण थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ में. बाकी ये करेंगे. त्यापेक्षा Wonderful to see वृद्ध her. महिलांबद्दल अगदी सविस्तर माहिती त्यांनी काय करावं दिली आणि आपण व्हिडिओ पण टाकलेला आपण हायलाईट आणि आम्ही पण लहान स्वरूपात तुम्ही जास्त सविस्तर काम करत आहात पण आम्ही लहान स्वरूपात अशाच व्हिडिओ पण टाकला आणि आपण जे काम करत आहात त्याबद्दल धन्यवाद. लहान स्वरूपात तुम्ही जास्त सविस्तर Okay, thank you. Ma'am, she's saying like whatever you are doing, it is at very large scale. But similar work she's trying to do in her own way at her place, and she's very happy to and is feeling inspired to be here and like listen to. So she has thank you for that. It is at very large scale. But similar work she's trying to do in her own way at her place. No, I think we and she's very happy felicitated to, her is feeling women's inspired senior to, citizen be here and, organization, listen right? to. हो ना मालती ताई, तुम्हाला अवॉर्ड मिळालाय ना ICI अवॉर्ड. येस No, I think we felicitated her women's. She's been doing excellent work. हो ना मालती ताई, तुम्हाला अवॉर्ड मिळाला. She's in Otur, a very rural area in Maharashtra. Where is Yes, it? sorry. Where is her? आपका कहाँ पर है? She's been doing excellent work. आपका गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में? Which area? जुन्नर तालुका जुन्नर जुन्नर तालुका. ओतूर गाव ओतूर. Okay, district. Where is the district? Which district? District is Junnar. नहीं, Junnar तालुका. district. पुणे डिस्ट्रिक्ट. Yes. Pune district, Junnar Pune तालुका. district, Junnar Taluka. Okay. I'm in second of remote area. Okay. अच्छा, ठीक है. तो जब कभी हमें अंजलि जी बुलाएंगी, पूना में बहुत पुरानी विजिट हमारी ड्यू है, तो हम Yes. आपके गांव में भी देखने के लिए आएंगे और आपकी महिलाओं से फिर मिलेंगे. येस वेलकम surely you come. She's very excited. Yes. Okay. So am I. I'm very happy. Really a good example of women empowerment. Very good example. Wonderful. I'm so glad to see her. Yes. And she's been Thanks to attending all IIT. our sessions. She's learnt mobile literacy through her programs, and she's Acha. encouraged women from her areas to
really Yes, come yes. forward and do good work. बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत अच्छा. Okay, Yeah. thank you. Yes. Thank you. Okay. I think, yeah, we have received some good comments on YouTube and Facebook, but there are no questions as such. So, Okay. ma'am, would you like to say something and then close? Yes, I'll just first of all, Abba, thank you so much for such a very, very excellent presentation. From the heart, it has been made because you've worked extensively over the years. I've seen you work, I've seen you grow, if I can say so, and it's really done full justice to the topic because you've covered what the grievances are, what the concerns are, and you've also spoken about the way in which they can change things and how they can take things in their own hands, especially the examples that you cited about, during the lockdown, how elderly women have sort of made good use of this negative period to, Yeah. empower themselves through startups, and various other home chefs have come to the fore. So I think you really covered it completely, and even I've received quite a few comments. Very good session, thank you, and so much because people have been watching it on YouTube and Facebook, as she said. So, and Yes, we'll be yes. putting it up on YouTube with your permission. Yeah, So yeah. obviously you'll keep getting more and more people. Prefer watching it at their leisure, their free time, also. So Yeah. I think. Thank you so much, No, and congratulations for the wonderful thank work you. that you're doing. Thank you. And Keep doing I it. wish. Keep doing it. Yes, thank you, Anjali. And I invite your entire team to Delhi once things normalize. Sure. Sure. And And, your long and I overdue also, visit yeah. I to Pune. might, yes, my trip is long due. Pune. And we Yeah. can also think of in future, once things normalize, some kind of Sure. a socio-cultural exchange visit of senior citizens from Maharashtra and our Delhi, North India. They will Very be good. very happy. Very. I'm sure this idea we can really take it up Yeah. because there'll be many वो senior लोग आए, citizens who'll be कम ग्रुप में आए, यहाँ पे बुजुर्गों के छोटे-छोटे. साथ उनके घर पे रहें, यहाँ के बुजुर्ग जाएं वहां पे, चाहे 10 लोगों का ग्रुप हो, 10 Yes. homes, like a Rotary exchange program, I know. Yeah, it's a Yeah. good idea. Right. I'm sure we will be really willing. Yes. Because Yes. we have a very active group here as well. I'm sure Yeah. they'd be very willing. Yes. Let's hope that Okay. these things get over fast. And thank you so much, Abba. Thank you. Yashoda? Good day. Stay safe. Thank you, Thank ma'am. you. Yes, Namaskar. thanks to our you. CSR Yes, support, Bye. Halda Chemicals, my Bye. team, Thank and you. all Yes, participants. we are thankful to Thank you them. so much. Yes. Thank Thank you you. for Bye. participating. Good See day. you. Stay Bye. safe, everyone. Take Bye. care. Yeah. Bye. Bye.